Good morning to my dear students. Welcome back to Atma Green School, Jai Swami Narayan. Today I start with Standard 8th, Book History, Lesson number 6, Weavers, Iron Smelters and Factory Owners. So students, in my previous class I had already discussed with the topics Indian textiles and the world market, then how the world tells us histories about muslin, calico, chintz, bandana. Then the next topic was Indian textiles in European markets, that is Calico Act, about its new inventions, major weaving centers in India, that is about Indian weavers, the art of weaving, and how there was a decline in Indian textiles after the arrival of British, when the British had started textile industry in European countries. Okay, and after that it was at the time of national movement. Okay students, so today I'll continue with this lesson from the topic Cotton Mills Come Up. From the early 19th century, raw cotton was exported from Bombay port to China and England. As you all know कि पहले टाइम में ट्रेड एंड बिजनेस वॉज ओनली थ्रू सी रूट, नो अदर वे. सो रॉ कॉटन जो इंडिया में पहले भी बहुत था एंशियंट टाइम से और आज भी बहुत है, स्पेशली इन गुजरात, बिकॉज टू ग्रो कॉटन वन नीड्स ब्लैक सॉइल, और हमारे गुजरात में काफ़ी ब्लैक सॉइल है टू ग्रो कॉटन. ओके, सो हमारे गुजरात में प्रेजेंट ऑल्सो देर इज लॉट्स ऑफ कॉटन, और एंशियंट टाइम से ये कॉटन टेक्सटाइल मिल्स चलते आ रहे हैं. सो फ्रॉम द अर्ली 19th century, raw cotton was exported from the Bombay port to China and England. Then the next is the first cotton mill. The first cotton mill in India was set up in Bombay in 1854. The number of mills in Bombay rose to over 84 by the year 1900. 1854 में सबसे पहला इंसेप्शन था कॉटन मिल का. इट वॉज ग्रोन एंड बाय द टाइम इट वॉज 1900 ओवरऑल 84 प्लस आज कॉटन मिल्स है. रॉ कॉटन वॉज easily available in Bombay, it being located close to the cotton growing areas. Okay, that is raw cotton was easily available in Bombay. At that time in Mumbai, raw cotton was easily available, it being located close to the cotton growing areas. यानी जो कॉटन ग्रोइंग एरियाज है वो जो इंडस्ट्रीज है उसके पास ही थी, इसलिए फॉर ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत इजी था. ओके, सो रॉ कॉटन वॉज इजीली अवेलेबल इन बॉम्बे बिकॉज इट बीइंग लोकेटेड क्लोज टू द कॉटन ग्रोइंग एरियाज. अर्लियर बॉम्बे हैड बीन एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट फॉर रॉ कॉटन एक्सपोर्ट. और एक समय ऐसे आया कि बॉम्बे, okay, previous it was known as Bombay, now we say it Mumbai. So Bombay में एक टाइम ऐसा आया कि इतना ज़्यादा कॉटन वहाँ मिलता था कि रॉ कॉटन was exported to other countries from Bombay port. Parsi and Gujarati businessmen set up mills in other cities like Ahmedabad in 1861 and Kanpur in 1862. Thousands of poor peasants, artisans and agricultural laborers migrated to the cities to work in the mills. Okay, उस टाइम में thousands of poor peasants थे, artisans, agricultural laborers, जिनके पास बहुत ज़्यादा काम नहीं था, सीजन का काम था, तो बाकी टाइम में they used to do some other economic activity. They migrated to cities क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी कॉटन मिल्स इंसेप्ट हो गई थी कि इन लोगों को, बिकॉज ऐसे कॉटन मिल्स वगैरह में ज़रूरी नहीं कि बहुत पढ़े लिखे लोग चाहिए, आपको वो काम आना चाहिए, तो वो काम तो कोई भी कर सकता है. पुअर पेजेंट्स, लेबर वर्क, पुअर पेजेंट्स, आर्टिजन्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, एंड सो व्हाट दे ऑल माइग्रेटेड टू सिटीज़ ताकि वहाँ मिल्स में
अच्छी अपॉर्चुनिटी तभी वो टाइम में थी कि इन्हें नौकरी मिल रही थी, टू वर्क इन द मिल्स एज द ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल्स क्रिएटेड न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जैसे जैसे कॉटन मिल की ग्रोथ बढ़ती गई मुंबई में लेबरिंग वर्क मतलब लेबर्स को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी फॉर दिस न्यू एम्प्लॉयमेंट। सो देयर वाज अ रश इन द सिटीज। इनिशियली द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स। देखो, आप इस दुनिया में कुछ भी हम करते हैं, हमें हमेशा ये सोच के चलना चाहिए सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ओके, तभी हम आगे कुछ कर सकेंगे। हमेशा तो हमें कोई भी चीज़ के एडवांटेजेस नहीं मिलेंगे। यस, समटाइम्स वी ऑल्सो हैव टू पास थ्रू डिसएडवांटेजेस। तो देयर वाज डिसएडवांटेजेस ऑल्सो ऑफ ग्रोइंग कॉटन मिल्स इन मुंबई। दैट इज the mills found it difficult to compete with the cheap textile imported from Britain. As you know कि ये एंशियंट टाइम से ये टेक्सटाइल मिल्स थी और ये काफ़ी कुछ एक्सपोर्ट होता था, लेकिन जब भी यूरोपियन कंट्रीज़ को लगा कि हम क्यों नहीं ये टेक्सटाइल मिल खोल ले, ओके, तो हमें जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी तो पैसा होगा वो भी हमारा बचेगा, बिकॉज वैसे ही दे मतलब बहुत ह्यूज प्रॉफिट्स दे वर गेनिंग through that. So that is the mills found it difficult to compete with the cheap textiles imported from Britain. In most countries, governments supported industrialization by imposing heavy duties on imports. Now, in most countries, governments they supported industrialization by imposing heavy duties on imports. It was only during the First World War that cotton textile industry in India got a boost. और it was मतलब कि boost यानी बहुत ज़्यादा boosting मिली। आसपास के countries भी they like working in this cotton textile. Cotton textile से huge profits था, बहुत export import business शुरू हो गया था। You know, it was टैलेंट था इंडिया के पास। पहले इंडिगो का बहुत ज़्यादा था, ब्रिटिश के टाइम पे इंडिगो का था, डाई कपड़ों करने का रिवाज तभी बहुत था। देन अभी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हो गया। सो इन इंडिया गॉट अ बूस्ट व्हेन टेक्सटाइल इंपोर्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन डिक्लाइंड एंड द इंडियन फैक्ट्रीज हैड टू प्रोड्यूस क्लॉथ फॉर द मिलिट्रीज। और जब भी मतलब कि इंडियंस ने अर्ज किया, प्ले किया, रिक्वेस्ट किया कि आप इंपोर्ट किए हुए कॉटन को क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो जब हमारे इंडिया में ही कॉटन ग्रो हो रहा है। तो कई लोगों ने सोचा यस ये बात तो सही है। सो जो बाहर से इंपोर्ट होता था वो सब बंद हो गया और उसकी वजह से ब्रिटिश की जो कॉटन मिल्स इंडस्ट्रीज थी इट केम टू डिक्लाइन एंड जो इंडियंस की कॉटन मिल इंडस्ट्रीज इट केम टू फ्लरिश। ओके, so it was during the First World War that cotton textile in India got a boost when textile imports from Britain declined and Indian factories had to produce cloth for the military. So students, हमेशा there are advantages और disadvantages किसी भी चीज़ के होते हैं। आप हमेशा सोचेंगे नहीं हमारा कभी disadvantages होगा ही नहीं किसी काम में, no, okay, it is not that possible. Clear? So okay, so next was the sword of Tipu Sultan and Wood's steel. Tipu Sultan ruled Mysore till 1799. He fought 4 wars with the British and died fighting with his sword in his hand. Tipu Sultan, the brave warrior, okay, of our time. It was a brave warrior of our time. That is from the Tipu Sultan ruled Mysore till 1799 and he fought 4 wars with the British
और जब उनकी डेथ भी हुई थी ना, उनके हाथ में ऐसे स्वॉर्ड थी. He was such a brave warrior. And you know, Britishers actually टीपू सुल्तान से डरते थे, लेकिन that is लेकिन इन्होंने धोखे से टीपू सुल्तान को मारा था. You know, आपको ये पता ही है कि कैसे बंगाल, this Britishers had attacked Bengal and slowly it has captured all the province of the Bengal. Nawabs सिराजुद्दौला को कैसे हराया, then this Tipu Sultan. Okay, Tipu's sword are now part of valuable collections in museums in England. बाहर इन फॉरेन कंट्रीज में जो म्यूजियम्स है, वहाँ हमारे यहाँ के काफ़ी वॉरियर्स की काफ़ी पुरानी हेरिटेजेस ऑब्जेक्ट है वहाँ पे. ओके, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट मांग रही है, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि नहीं, मतलब वहाँ के भी लोग जो है वो रिस्पेक्ट है उनके लिए फॉर सच वॉरियर्स, इंडियन वॉरियर्स. ओके, देन टीपू सुल्तान स्वॉर्ड. लेट्स स्टडी अबाउट कि उनकी स्वॉर्ड कैसी थी. द स्वॉर्ड वॉज वेरी हार्ड with a very sharp edge having a flowing water pattern. एकदम टीपू सुल्तान की जो स्वॉर्ड थी बहुत ही हार्ड थी. ओके, एंड उसकी जो एज थी इतनी शार्प थी, बहुत शार्प थी, और ऐसे लगता था जैसे पता नहीं हमेशा उस पे से इतनी शाइनिंग करती थी, वो वाइट कलर लगता था जैसे वाटर फ्लो कर रहा, रिफ्लेक्शन. It was made from a special type of carbon steel called Wood's steel. What is Wood's steel? Wood's, W-O-O-T-Z. Wood's steel, a special type of high carbon steel produced all over South India during the 18th century. Okay, it was a special type of high carbon steel produced all over South India during the 18th century. प्योर स्टील की बनी हुई थी. द फ्लोइंग वाटर पैटर्न, जैसे फ्लोइंग वाटर का पैटर्न नहीं होता है, ऐसे पैटर्न की उनकी स्वॉर्ड बनी हुई थी. द फ्लोइंग वाटर पैटर्न केम फ्रॉम वेरी स्मॉल कार्बन क्रिस्टल्स, छोटे छोटे क्रिस्टल्स एम्बेडेड इन द आयरन. एम्बेडेड यानी जैसे इनले वर्क किया होता है ना, उसके अंदर जड़ा होता है वो. Embedded from a very small carbon crystals embedded in the iron. बहुत ब्यूटीफुल थी. एंड कहा जाता है it is still there in the museums of England. Then wood steel. The woods and anglicized word derived from the Kannada word ukku, Telugu word hukku, and Tamil and Malayalam urukku, meaning steel. ओके, स्टील उसका मतलब है. जो साउथ इंडिया का स्टील था, produced all steel was produced all over South India by mixing iron with charcoal in small clay pots kept in smelting furnaces. Huge जो burning बड़े बड़े हर्थ होते ना, भट्टी कहते हैं जिनको, फर्नेस, जिसमें डालकर मेल्ट किया जाता था. तो द प्रोसेस स्मेल्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम रॉक और सॉइल बाय हीटिंग इट. उस भट्टी में, उस हर्थ में उसे हीट किया जाता था एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, और ऑफ मेल्टिंग ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम मेटल इन ऑर्डर टू यूज मेटल टू मेक समथिंग यूज. यू नो, ऐसी भट्टी, ऐसे हर्थ में उस आयरन मेटल को डाल दिया जाता था और उसे मेल्ट किया जाता था. जब वो बहुत तरह से गर्म हो जाता था ना, तो वो गरम ही निकाल के उसे जिस भी ऑब्जेक्ट में मोल्ड करना वो चाहते थे, उस ऑब्जेक्ट में वो मोल्ड कर देते थे. बीइंग हॉट, जस्ट बिकॉज इफ द ऑब्जेक्ट इज हॉट इट एक्सपैंड्स एंड इफ इट इज कोल्ड इट कॉन्ट्रैक्ट. तो जैसे ही वो हॉट हो रहे हैं, राइट, सो हॉट होता है, तो वो जैसे उसको मोल्ड करो, जिस भी ऑब्जेक्ट में आप उसको शेप दो, इमीडिएटली वो शेप में टर्न हो जाएगा. वंस इट इज कूल्ड इट कॉन्ट्रैक्ट्स. फिर अगेन आपको उस फर्नेस में उसे बर्न, मतलब कि
मेल्ट करना पड़ेगा. सो इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस और एक्सपेंसिव प्रोसेस है. और फिर जिस भी, क्योंकि जो स्टील एंड आयरन है, दिस इज अ बेसिक, ये तो हर एक जगह एज अ बेस इसे यूज किया जाता है. देन मेकिंग ऑफ टीपू सुल्तान swords. Francis Buchanan had toured Mysore in 1800 and has given a good description of the technique of wood's steel manufacturing. Even Michel Faraday, the legendary scientist, spent 4 years studying the properties of Indian woods during 1818 to 1822. इतना प्योर स्टील था that was made in South India, और many renowned personalities, that is Francis Buchanan and second was Michael Faraday. Okay, इन्होंने इस प्रॉपर्टीज के बारे में काफ़ी स्टडी की थी. देन abundant furnaces in villages. उस टाइम साउथ के विलेजेस में बहुत सारे भट्टियाँ थी, hearth furnaces to melt such iron. Iron smelting in India was fairly common till the end of the 19th century. The furnaces were usually made of clay and sun-dried bricks with the, मतलब कि उस भट्टियाँ हैं तो उसे ऑब्वियस बाहर खुली जगह में रखा जाता था, और ये नहीं है कि सन की रेस उस पर कोई अफेक्ट नहीं करता. दैट वाज sun-dried bricks से बनता था ये. With the smelting being done by men while the women worked the bellows pumping air that kept the charcoal burning. Bellows यानी वो ऐसे मारते रहते थे ताकि जो भट्टी के नीचे कोयला है, you know, ऐसे गांव के जो विमेन्स होती हैं वो कैसे वुड को जलाते हैं ना कंटिन्यूस, ताकि कोयले को आग लगती जाए और वो जलता जाए. द सेम वे विमेन ये काम करती थी इन द विलेजेस. सो दैट वाज कैसे टीपू सुल्तान की जो स्वॉर्ड थी वो वुड्स की बनी हुई थी, वुड स्टील. देन मेकिंग ऑफ टीपू सुल्तान swords and abundant furnaces in villages. Then next is reasons for the decline of iron smelting. कैसे आयरन स्मेल्टिंग का एक समय था जो बहुत अच्छा था, बहुत फ्लरिश करता था, और कैसे अचानक इट केम टू डिक्लाइन. एट दिस टाइम अ सीरीज ऑफ फेमाइन्स coupled with strict implementation of the forest laws led to the decline of iron smelting. Okay, उस एक टाइम ऐसा आया जब there was series of famines, drought, सूखा, अकाल, coupled with strict implementation, और उसके बाद से फॉरेस्ट में जो लॉज थे वो बहुत स्ट्रिक्ट हो गए थे. ओके, कोई भी एग्रीकल्चर नहीं, किसी को भी एग्रीकल्चर का अलाउ नहीं था, या कोई भी काउ बॉय या शेफर्ड यूज्ड टू टेक देयर एनिमल्स फॉर पैस्चर, फॉर ग्रेजिंग, या कुछ भी फॉरेस्ट लॉज एकदम स्ट्रिक्ट कर दिए गए थे. सो इसकी वजह से तो आयरन स्मेल्टिंग का वो जो दौर था वो डाउन हो गया. द फॉरेस्ट लॉस prevented people from entering the reserved forest जो गवर्नमेंट ने अपने अंडर कर लिए थे. लॉ स्ट्रिक्ट कर दिए ना, from entering the reserved forest, resulting in them not getting the charcoal required for smelting. अब चारकोल तो हमें वहीं से मिलता है ना, जंगलों से, इसीलिए वो रिजर्व्ड फॉरेस्ट में एकदम स्ट्रिक्ट कर दिया था. रिजल्टिंग इन देम नॉट गेटिंग द चारकोल, और चारकोल से ही भट्टियाँ जलती थी, तो चारकोल की इतनी कमी हो गई, ऑलमोस्ट नहीं, जिसकी वजह से आयरन स्मेल्टिंग का बिजनेस डिक्लाइन हो गया था. चारकोल रिक्वायर्ड फॉर स्मेल्टिंग. फर्दर आयरन स्मेल्टर्स, जो ये आयरन स्मिथ किया जाता है ना, had to pay very heavy tax to the forest department for every furnace they use. अब उनको धीरे धीरे जैसे जैसे लॉस एक्ट, न्यू एक्ट लॉस पास हुए, फॉरेस्ट के लॉस पास हुए,
ये जितने भी स्मेल्टर्स थे ना, दे हैव टू पे हेवी हाई टैक्स टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉर एवरी फर्नेस दे यूज्ड एंड दिस रिड्यूस द इनकम. अब वो इतना इनकम नहीं थी जितना उनको टैक्स पे करना पड़ता था, तो मतलब कि बहुत डिक्लाइन हो गया. उनको इनकम भी उनको देनी पड़ती थी, इतनी ज़्यादा इनकम थी नहीं जितना वो टैक्स में उनकी इनकम चली जाती थी. और सो इट वॉज अनेबल. सो बहुत सारे आयरन स्मेल्टर्स थे, दे शिफ्टेड टू अदर नॉन इकोनॉमिक, मतलब अदर इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन. इन एडिशन, iron and steel was being imported from Britain. Ironsmith began using the imported iron to manufacture utensils and implements. और जो आयरन स्मिथ थे वो काफ़ी चीज़ों को इम्पोर्ट करने लग गए थे, ओके, ताकि वो उन चीज़ों से यूटेंसिल्स और इम्प्लीमेंट्स बना सके. बिकॉज फॉरेस्ट रिजर्व में तो मतलब रिजर्व कर दिए थे अपने फॉरेस्ट, गवर्नमेंट ने वो अपना डिपार्टमेंट एवरीथिंग, तो चारकोल मिल नहीं पाते थे, तो एवरीथिंग वाज इम्पोर्टेड, ओके, टू मैन्युफैक्चर यूटेंसिल्स एंड इम्प्लीमेंट्स. दिस रिड्यूस द डिमांड फॉर आयरन प्रोड्यूस्ड बाय लोकल स्मेल्टर्स, यानी बाय द आयरन स्मिथ्स. By the early 20th century, the artisans producing iron and steel faced a new competition. Okay, that is by the early 20th century, the artisans जो iron and steel produce करते थे, day by day जैसे जैसे era बीतता गया, they have to face a new competition. Obviously, जैसे जैसे एरा बीतता गया, फॉरेस्ट लॉज चेंज होते गए, ओके, लोगों की जो हाई इनकम थी रिड्यूस हो गई, वन हैज़ टू पे द हैवी टैक्सेस, सो मतलब ऑल टुगेदर एवरीथिंग रिड्यूस्ड. कईयों का अच्छा भी बिजनेस रहा और कईयों का बिजनेस रिड्यूस्ड हो गया. ओके, सो दैट वाज द रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ आयरन स्मेल्टिंग. Now see, related to this, ये जो मैंने अभी explain किया, one question, important question is, why would the iron and steel making industry be affected by the defeat of the Nawabs and Rajas? The East India Company gradually conquered different states and expanded its territory. Nawabs and Rajas were forced to admit the supremacy of the company. The requirements of weapons by the native rulers became lesser. Thus the swords and armor जो उस टाइम के वॉरियर्स यूज करते थे, okay, pure iron and steel can very heavy. Thus the swords and armor making industry died, मतलब finished हो गई with the conquest of India by the British. Imports of iron and steel from England displaced the iron and steel produced by craftspeople in India. ब्रिटिशर्स ने और ज़्यादा चालाकी की कि उन्होंने इंपोर्ट करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से हमारे जो छोटे छोटे स्मॉल स्केल पीपल थे, क्राफ्ट्समैन पीपल, उनकी जो आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस थी उसमें डिक्लाइन आ गई. बाय द लेट 19th century, द क्राफ्ट ऑफ आयरन स्मेल्टिंग was in decline due to political, social and economic reasons. Okay, that is by the late of 19th century, the craft of iron smelting की जो craftsman people है, जो ये iron smelting करते थे, या you can say iron smith जो ये काम करते थे, was declined due to the political, social and economic reasons.
सो स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब ये है कि बिफोर ब्रिटिशर्स हर एक बिजनेस हमारे इंडिया में वॉज इन द फ्लरिश इन द एशियन टाइम, बट एज द ब्रिटिशर्स लैंडेड टू इंडिया, ओके, शुरू में तो ठीक था, लेकिन जैसे जैसे दे स्टार्टेड इन्वेडिंग द टेरिटरीज, द प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया के जो क्राफ्ट्समैन था, क्राफ्ट्समैन, आर्टिजन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज तो टोटली खत्म हो रही थी, वॉज टोटली डिक्लाइंड, ओके, एंड हैवी टैक्सेस वर इम्पोज्ड ऑन एक्सपोर्टिंग, और जब इम्पोर्ट करते थे तो कोई हैवी टैक्स नहीं लगता था. So there were many reasons, due to political, social and economic reasons that the people faced जैसे जैसे era बीतता गया. Okay, so as the era has crossed, there were many problems. ये जो छोटे छोटे जो iron and steel industries है, small scale industries, artisans, then the craftsmen people, they suffered a huge loss as the Britishers landed to India. Okay students, so tomorrow I will continue my class with the same lesson, and the topic will be iron and steel factories come up in India. Okay, so please do read this lesson up till what I had finished today. Read the lesson once, twice, thrice. जितनी बार आपको वक्त मिले आप lessons की read करो. And I want to remind you that today it is 11th. 11th is almost over. Only 3 days are left to go for your subject enrichment activity. Please be quick and submit by tomorrow and day after tomorrow. Okay? So with this, I wrap up my class here. Thank you to all. Take care.